अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन वेट अ सेकंड। अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक हो सर? बट इंशा वालेकुम अस्सलाम एवरीवन, वेट अ सेकंड। इनको भेज देते हैं, वेट अ सेकंड। चलो, ओके, गुड 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 एवरीवन, जस्ट ओनली वेटिंग फॉर 1 मिनट, 1 और 2 मिनट्स माय डियर। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। चलो, okay, my dear students, I'm audible to you everyone. Okay, great going everyone here. Just let me in the chat box very fast. Okay, everyone. Muskan Shabir, walaikum assalam. Rakib, walaikum assalam, my dear. Salman, walaikum assalam. Barseher, walaikum assalam. Farooq, thank you so much for sending me the hearts. Adnan, walaikum assalam. Maria Shafi, walaikum assalam, my dear. But Hilal, Farooq, everyone, my dear. Walaikum assalam, Adnan. Insha, Asma, walaikum assalam. Dar, Shumaila, walaikum assalam. Okay, Shadanishta, walaikum assalam. Okay, we are going to wait for 1 or 2 minutes, my dear, so other people can join as well. I'm audible to you. Just let me in the chat box very fast. I'm audible to you, my dear students. I'm audible to you. Let me in the know in the chat box. Let me in the chat know in the chat box. I'm audible to you, my dear students. Okay, okay, okay. I'm audible to you. I'm audible to you. Great going, my dear students. I'm audible to you. Yes, yes, sir. I'm audible to you, the King of Physics. Okay. Uh, Thank you so much for telling you are this law king of physics. Okay. Assalamu alaikum asma. Walaikum assalam. Yeah, okay, jaldi you join. हमारा टाइमिंग था 8:20. We have been in the 2 minutes. Thank you so much. Let me in the chat box and send me the hearts and send the fire emojis if I audible to you, my dear student. Jaldi fast. If I'm audible to you, just let me in the chat box very fast. We are going to start. Okay, everyone. Okay. Jaldi. Yes, sir. Okay. Yawar Abbas, thank you so much for sending me the hearts. Harun, thank you so much. या दानिश्ता, थैंक यू। इतना हार्ट सेंड करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया। यस इमू सर, लव लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। इतने हार्ट सेंड करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Adnan, thank you so much, Maria. My yes, sir. Okay, last 1 minute we are waiting. After that, we are going to start. Shabash, jaldi. Shabash, great. Wow, hearts everywhere. Great going, Maria. The center of mass में numerical is I am bored में. Yes, my dear, करने हैं rotational mechanics में करा दूंगा, मत लो टेंशन। फिलहाल सब कुछ करा दूंगा, तो मत ले टेंशन। चलो, ओके। वो अभी हमें चैप्टर अभी उठाया नहीं है। शाबाश, रोटेशनल मैकेनिक्स सारे चैप्टर्स के जितने भी जेके बोर्ड में आए हैं पिछले 10 सालों में सारे करा दूंगा। इमू सर नहीं, इमली सर, क्या बोल रही है? चलो, ओके मेरा डियर, ग्रेट गोइंग एवरीवन। चलो, ओके, शाबाश। ओके, लास्ट 1 मिनट, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अबू उस्मान, थैंक यू सो मच माय डियर, इतना प्यार भेजने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो, let me in the chat box very fast. I'm audible to you. Last is the last time I'm saying great, my good people. Great, everyone.
आई एम ऑडिबल टू यू? ओके सर, सलाम सर। ड्यूअल नेचर क्लास 12 स्टडी बूस्टर मैंने खत्म किया है। दो क्लास में स्टडी बूस्टर, यू कैन गो टू द यूट्यूब चैनल, लाइव ऑप्शन में देख। ड्यूअल नेचर मैंने सारा पढ़ा है। ड्यूअल नेचर मैंने सारा पढ़ा है मेरा डियर। दो बड़े शॉर्ट्स में, दो मैंने उसमें खाली दो ही लेक्चर में वो खत्म किया था। 5-5 घंटे के दो लेक्चर से। यू कैन गो 4.5 घंटे के लेक्चर से मेरा डियर। गुड गुड गुड। स्टडी बूस्टर गो टू द यूट्यूब, लाइव लाइव में पढ़ा है। लाइव में पढ़ा है। ड्यूअल नेचर 5 घंटे का पढ़ा है मेरा जगह। स्टडी बूस्टर जिसने टेक्स्ट किया। ताबिशवानी सर्व की फर्स्ट प्लेन प्रोग्रेस वे। चलो पहले इसको खत्म करते हैं, तो लास्ट पे टाइम मिलना चाहे मैं करा देता हूँ, कोई मसला नहीं। चलो ओके, गुड 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 पीपल। ओके लेट्स स्टार्ट माय डियर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू हैव द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू बी, आज हम कवर करेंगे एक तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम करने वाले हैं acceleration due to gravity and the variation of acceleration due to gravity due to the depth and due to the altitude, that is your height. ठीक है। First my dear, we are going to cover the question. टुडेज क्वेश्चन, दो क्वेश्चन कवर करे हो जाएंगे। स्टेट एंड एक्सप्लेन, पहला क्वेश्चन जो आपके पास एक्सप्लेन होने वाला है। स्टेट एंड एक्सप्लेन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कल हमने कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन खत्म किया था। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का। स्टेट एंड एक्सप्लेन, स्टेट एंड एक्सप्लेन, स्टेट एंड एक्सप्लेन। ओके ओके, स्टेट एंड एक्सप्लेन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मेरी दुआ आप सबके साथ है। अल्लाह आपको जिंदगी में कामयाब करे और आपको अच्छे डॉक्टर्स और इंजीनियर बनाए और आप बड़े इंसान बन जाए और अपने माँ बाप के लिए आप जो करना चाहते हो, अल्लाह उसको उस मकसद में आपको कामयाब करे। ठीक है। चलो ओके, लॉस ऑफ लव फ्रॉम माय साइड माय डियर स्टूडेंट्स। गुड 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 गुड। चलो ओके। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता क्या है, ध्यान रखेगा मेरा डियर। लेट्स चेक आउट विद द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बी करें माय डियर स्टूडेंट। नाउ सी सिया, वैसे मेरा डियर डिस्कवर किया किसने? न्यूटन ने किया था, ये तो सबको पता है। 1665 में। भाई हिस्ट्री तो लिखनी है नहीं, ठीक है मेरा डियर। सर यहाँ पर तो इट इज नॉट अ हिस्ट्री क्लास, आई एम गोइंग टू राइट इट वाज 1665। फिर न्यूटन ने ऐसा देखा, फिर पब्लिश किया उसने बुक में प्रिंसिया इन 1687 में। ओ मेरा डियर, मुझे इसको करना कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा डियर इट इज नॉट अ हिस्ट्री क्लास। ओके, व्हाट द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन इज टेलिंग माय डियर स्टूडेंट, बी वेरी क्लियर। बी वेरी क्लियर, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन विद द डेप्थ एंड वेरिएशन विद द ऑल्टीट्यूड। ठीक है मेरा डियर। नाउ सी, according to the universal of gravitation my dear, in this universe my dear, be very clear, एवरीबॉडी जो भी है मेरा डियर, एवरीबॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। अगर आपके पास कोई और बॉडी है, मेरे पास एक और बॉडी है, दो बॉडीज मैंने लिया। सर कोई भी बॉडी किसी दूसरे बॉडी को सर अट्रैक्ट कर सकती है एक फोर्स से। ठीक है मेरा डियर, एक अट्रैक्ट कर सकती है एक फोर्स से। जो फोर्स होता है बच्चा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ऐसे समझ लो, अगर आपके पास एक ये बॉडी है, इसका मास है, बात सुन ले मेरा डियर, m1, and दूसरी बॉडी है मास m2, be clear my dear, and these are separated by the distance of r. Clear my dear? So according to the universal of gravitation, what is telling my dear, every body in this universe attracts every other body. कोई भी बॉडी किसी और दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है एक फोर्स से my dear. That force is going to be directly proportional. मारिया बी वेरी क्लियर सर, दैट फोर्स इज गोइंग टू बी, मैंने दो मैसेज ली, एक मैस से आपके पास m1 एंड दूसरा मैस आपके पास है m2। बी वेरी क्लियर, एंड दीज आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ r. What my dear universal of gravitation is stating that if we are going to have two masses, one is m1 and m2, and these are separated by the distance of r, and they will allow to attract, they will have, my dear, be very clear sir, they will allow to attract each other by the force, and that force F is going to be directly proportional to the product of magnitude of masses, proportional to, directly proportional to the product of magnitude of masses, and inversely proportional to the square of distance between them.
And when we remove the proportionality, we say, my dear, remove the proportionality, use the constant, and that constant is, my dear, capital G, and that is known as the universal gravitation constant. So, means according to, my dear student, according to the law of gravitation, sir, everybody in this universe, love to attract another body, love to attract every other body with the force. And that force, which is going to be directly proportional to product of magnitude of the masses and inversely proportional to the square of distance between them. But remember, my dear student, जो भी ये force होगा, it is always acting along the line that is joining the two bodies. जो भी line in two bodies को, two masses को join करेगा, उस line के along ये force, my dear, act करता है. So इसका मतलब हुआ, if I am going to write the statement, I am going to write, मैं क्या लिख सकता हूं सर, universal according to the यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये तो इजी है माय डियर, ये तो बच्चों में 9th में पढ़ाते भी है. अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरीबॉडी एवरीबॉडी शाबाश अट्रैक्ट्स every other body, yeah, another body, every other body in this universe, with a force which is directly proportional to directly proportional to product of magnitude of masses, या प्रोडक्ट ऑफ मासेस लिख सकते हैं सीधे, प्रोडक्ट ऑफ मासेस and inversely proportional to square of distance between them. ठीक है मेरा, बट याद रखिएगा, this force is acting along the line joining the two bodies. चलो मेरा डियर, बिल्कुल आसान सर, ये तो डेफिनेशन होगी, ये तो बिल्कुल आसान वाली बात होगी, ये तो मजा ही मजा है, ठीक है, हलवा है भाई ये. सो मींस अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, माय डियर, अगर आपके पास दो मैसेज है, आपके पास m1 और m2 है, अगर आपके दो बॉडीज है, सर एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स लव टू अट्रैक्ट अनदर बॉडी. कोई भी बॉडी किसी और दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है एक फोर्स के साथ, जो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. एंड सी माय डियर, अगर मैं यहां पर लेके चलता हूं, ध्यान रखेगा, दो मैसेज लेते हैं, ये आपके पास m1 and m2 and these are separated by the distance of r. so जो इनके बीच में f f f f f क्या होगा, so f will be directly proportional to m1 m2, शाबाश, and f will be inversely proportional to square of distance between them. From equation first and second, यही तो बोल रहा है, directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. So from equation first and second, I can write f is directly proportional to m1 m2 and inversely proportional to the square of distance. Remove proportionality, and use constant. So f is equal to g times m1 m2 divided by r square. This is going to be your
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की माय डियर क्या इक्वेशन, वायर जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, एक तो कैपिटल जी होता है, दूसरा स्मॉल जी। कैपिटल जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, एंड ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। एंड इसका वैल्यू तो सबको पता है, सब याद करके इसको कभी भूलते भी नहीं है। 6.67 माय डियर, इसका वैल्यू जो है 6.67 इंटू 10 ⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर per kg square, but it is in the SI unit. This a value of in SI unit. This is value in SI unit. And CGS में, इन CGS में G का वैल्यू होता है 6.67, याद रखेगा, इंटू 10⁻⁻8, 10⁻⁻8 याद रखेगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 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 याद रखेगा, पर ग्राम स्क्वायर याद रखेगा। दिस इज इन द CGS सिस्टम, CGS। क्लियर मेरा डियर, बिल्कुल आसान। अब ध्यान रखेगा, अब ये जो जी है, ये जी किस किस पे डिपेंड कर रहा है, याद रखेगा। ये जो वैल्यू ऑफ जी है ना, आपके पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, सर ये जी किस किस पे डिपेंड कर रहा है मेरा डियर? ये जी जो है, जी इज इंडिपेंडेंट। ये जी सर इंडिपेंडेंट होता है, याद रखेगा, इंडिपेंडेंट अपॉन, याद रखेगा, अपॉन द नेचर is independent, the value of g, or इधर the value of g is independent upon the nature, ये नेचर पे डिपेंड नहीं करता, नेचर एंड साइज ऑफ बॉडी, इट डजंट डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बॉडी, ये बात याद रखेगा। एंड ऑल्सो इंडिपेंडेंट, ये बात याद रखेगा, ऑल्सो इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट होता है माय डियर अपॉन द, याद रखेगा, नेचर ऑफ मीडियम, upon the nature of medium in which two bodies are placed, in which bodies are placed, उस पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। That is why Newton's law holds good for all bodies in the universe, irrespective of their nature, mass, size, shape, etc. That is why it is going to set be universal, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल, याद रखेगा। कोई बोलेगा क्यों यूनिवर्सल बोलते हैं, बोलना क्योंकि बच्चा न्यूटन्स लॉ होल्ड्स वेरी गुड फॉर ऑल द बॉडीज इन द यूनिवर्स, irrespective of their what their size is, what their shape is, what their masses are, at any place, at all the times, my dear. And that is why Newton's law of gravitation is known as universal law of gravitation. Be clear. कोई अगर बोलेगा यूनिवर्सल क्यों बोलना है, आप लिख लेना, as Newton's law of gravitation holds good for all the bodies in this universe, irrespective of their nature, that is mass, size, shape, etc. at all the places and all the times, and at all the times. And that is why it is universal law. It holds good. That is why it is called as universal law of gravitation. याद रखेगा जिगर मेरा, that is it my dear. यूनिवर्सल क्या बोलते हैं? दिस इज अबाउट माय डियर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है सर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? शाबाश मेरा डियर, इतना काफी है। अब इसको और एक चीज नीचे लिखेंगे आप मेरा डियर, बात सुन लेना। एज
इधर इधर देखिए आप, ये कांस्टेंट एक्चुअली क्या है, देखिए आप, एज आपने लिखा एफ आया बराबर Gm1m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्लियर मेरा डियर, शाबाश। अगर आप इधर मासेस का, अगर m1 इज इक्वल टू m2, दोनों 1 kg है, एंड इनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है वो 1 मीटर कर देते हैं। बात सुन लेना मेरा यार, अगर ये आपके पास एक मास है, इसका वैल्यू m1, इसका वैल्यू लिया 1 kg, एंड दूसरा मास है m2, इसका भी लिया यूनिट मास, दैट इज 1 kg, ठीक है। एंड इनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन r है, वो लिया 1 मीटर, ठीक है मेरा डियर। सर मास दोनों का यूनिटी, एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन भी 1 यूनिटी, इधर यूनिटी, तो हमारे पास क्या आएगा तब, देयरफॉर हमारे पास आएगा F विल बी इक्वल टू G इंटू मास भी लेना है 1 kg, दूसरे बॉडी का भी 1 kg, एंड डिस्टेंस लेना है 1 मीटर, 1 मीटर का स्क्वायर। सो F विल बी इक्वल टू G, F होगा G के ही बराबर, F होगा G ही, F G ही है, F G ही है, या G F ही है, G F ही है। अगर दो बॉडीज के बीच में, अगर दो बॉडीज का मास है 1 kg, एंड उनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, याद रखेगा। सो मैं लिखूंगा 10 यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट is numerically, याद रखेगा, इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज, बिटवीन द टू बॉडीज, क्योंकि यूनिवर्सल इधर जो ग्रेविटेशन, इधर यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव नेचर होता है, दैट इज मेरा डियर, ये एफ जी होता है, एफ जी होता है, इधर इधर बिटवीन द टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास, जब दो बॉडीज का मास यूनिट मास होगा, यूनिट मास सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस, यूनिट मास दोनों का 1 kg सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस, एंड दोनों में जो डिस्टेंस होगा वो 1 मीटर, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होना चाहिए 1 मीटर, ये याद रखेगा। दैट मीन्स एफ जी होता है, एफ जी होता है, एफ जी ही होता है, और सबको पता है इसके डायमेंशंस होते हैं जी के, ये तो पता ही है सबका, सबको पता है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ जी, ये तो याद है ना मेरा डियर, पढ़ा होगा आपने सर, डायमेंशन फॉर्मूला में लिखा है ना मेरा डियर, डायमेंशंस में करे होंगे, बहुत अच्छे से करा देते हैं ना मेरा डियर। चलो जी के डायमेंशन तो याद है ना, m-1 l द क्यूब t-2 करा देते हैं, है ना मेरा डियर। चलो ओके, आ जाओ, गुड 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 गुड, शाबाश, ये तो क्लियर हो गया। अब इस जी, इस प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, बात सुने मेरे डियर, इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ इंटरवीनिंग मीडियम, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, याद रखेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है, याद रखेगा, याद रखेगा। तीसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज एक सेंटर फोर्स होता है, याद रखेगा। इट एक्ट्स अलोंग द लाइनिंग ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज, याद रखेगा। ग्रेविटेशनल टू बॉडीज का होता है इंडिपेंडेंट अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज, याद रखेगा। एंड ग्रेविटेशनल जो लॉ है इट स्ट्रिक्टली होल्ड करता है फॉर द पॉइंट मासेस, इधर मैंने पिछले बार भी इधर पॉइंट मासेस, वो पॉइंट मासेस होते हैं, बात सुने मेरी ओर, जिनका इधर इधर, जिनका इधर इधर जो स्मॉल होते हैं रादर देन देयर डिस्टेंसेस, इवन ये पॉइंट मासेस का कोई एरिया नहीं करते हैं, कोई ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है मेरा डियर। एंड न्यूटन्स लॉ जो है इधर इधर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना मेरा डियर, ये आपस में इधर अगर इसका वेक्टर फॉर्म लेते हैं ना, ये दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होते हैं, ऐसे समझ लो मेरा डियर। अगर आपके पास ऐसे है, ये आपके पास मास m1 है, ये मास m2 है, अगर इनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन r है, इधर मेरी ओर, ये दो, ये फोर्स जो है ना आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ये इसकी ओर, ये इसकी ओर, ये फोर्स होगा 1 पे 2 डालेगा, 1 पे 2 डालेगा, एंड 2 को खींचेगा 1 अपनी ओर, ये दोनों फोर्सेस होते हैं इक्वल एंड अपोजिट, इधर इधर ये दोनों फोर्सेस होते हैं इक्वल एंड अपोजिट, दैट इज व्हाई हम लिखते हैं F12, फोर्स ऑन 1 2, ये अट्रैक्टिव नेचर है, फोर्स ऑन 1 2 इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन F21, या ये भी लिख सकते हैं
F21 पे फोर्स 2 पे 1 डाल रहा है, दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ माइनस F12, क्योंकि ये इक्वल और अपोजिट होते हैं, ये इक्वल, दैट इज व्हाई इट इज ओबेइंग द न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। याद रखिएगा मेरे डियर, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, ये इसका वेक्टर फॉर्म है, ये इसका वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। सर क्या, ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, और इधर इधर जब वन टू की ओर फेस नहीं करेगा, मास M1 फेस नहीं करेगा टू की ओर, एंड इसका M1 फेसिंग R/2, इसका पोजीशन वेक्टर है R12 कैप, दैट मींस वन इज फेसिंग टुवर्ड्स टू, वन इज फेसिंग टुवर्ड्स टू, शाबाश शाबाश शाबाश, वन इज फेसिंग टुवर्ड्स टू, शाबाश सर। जेके 11th के पर पेपर लव यू सर। अननोन चीज है मेरा जगह, मैं कल भूल गया था एक्चुअली, मैंने बना के रखा है, वो थोड़ा सा मुझे इस पे चढ़ाना था मेरा डियर, इस पे ना, आई मीन टू से टैब पे, टैब के बाद उसका वीडियो बनाना था, इंशाल्लाह अगर आज हो सका इंशाल्लाह कर दूंगा मेरा जगह। एंड थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दिस ₹40 unknown user, thank you so much sir, this means a lot to me my dear, lots of love, thank you so much. So F12 is equal to minus F21, F21 is equal to minus F2, that means ये दोनों फोर्सेस इधर M1 M2 को अपनी ओर खींचेगा, M2 M1 को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि ये फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। अब मेरी ओर तब तक नहीं खींचेगा जब तक M1 का चेहरा M2 की ओर नहीं होगा, M2 का चेहरा M1 की ओर नहीं होगा। हाय हाय, नजरें मिलानी है। एंड R12 कैप हो गया पोजीशन यूनिट वेक्टर, मैंने पिछले बार भी बोला यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो गिवन वेक्टर का डायरेक्शन देता है, इसका मतलब वो R12 कैप, वन इज फेसिंग टुवर्ड्स टू, M1 is facing towards 2. Similarly, R21 cap, R21 cap मतलब 2 is facing towards 1। ठीक है मेरा डियर, अब जाके दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। F1 इधर फोर्स ऑन वन, मास वन बॉडी, इसको 2 पे लगेगा अपनी ओर खींचेगा, एंड सिंपली 2 पे लगेगा ड्यू टू 1, इसको अपनी ओर खींचेगा। अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर, ये अट्रैक्टिव इन नेचर है, अट्रैक्टिव इन नेचर है, अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव, शाबाश मेरा डियर। दिस इज द वेक्टर फॉर्म and thank you so much. This is the first super chat, this is the first super chat of ₹40 on my YouTube channel. Thank you so much Anu Chaser for sending me the ₹40 on my first time. It is a lot of love from my side, seriously। 40 रुपए कुछ नहीं है, बट मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि if you are giving me the super chat of ₹40, and literally my dear, it means a lot of love to me, it means a lot of love to me। Thank you so much, thank you so much, Allah bless you, thank you so much, it means a lot to me। This is not a ₹40, it means your respect, it means how much you love me, it means how much you love my content, how much you are making a good time to make a live stream on my YouTube channel, and it means that how much I'm being a ray of hope for me just to stand on your expectations, not to let you down, my dear student। I really love you by core of my heart। Okay, great everyone, great going। आपका गेस्ट पेपर माय डियर स्टूडेंट, यू कैन अननोन चेजर, आई कैन पुट यू, अगर कभी भी आपको कुछ है यू कैन ड्रॉप माय टेक्स्ट ऑन हाई करके, मैं आपको गेस्ट पेपर पर्सनली भी सेंड कर सकता हूं, इतना तो आपके लिए कर सकते हैं, कर लो ऐश। मैं नहीं जानता आपको मेरा डियर, आप कहां से हैं, इट्स माय नंबर, यू कैन पुट योर टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप 9797145636, यू कैन से मी हाय। इंशाल्लाह आज ही या कल सुबह तक आपको गेस्ट पेपर अपलोड हुआ होगा, आपको उसका वीडियो भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, इवन जितने भी क्वेश्चन के आंसर है इनके सब के आपके क्वेश्चंस का गेस्ट पेपर के आंसर्स तक भी मिलेंगे, वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है लाइव ऑप्शन में। चलो अब थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स लिखेंगे। सर हम भी कल से, सर कल से देंगे चलो पैसे सेंड करने की जरूरत नहीं है मेरा डियर, आप खुश हो मेरे लिए बड़ी बड़ी बात है। चलो सुपर चैट की आज पहली बार, हमारे पहली चैनल का एक पहला सुपर चैट है, नाम नहीं पता मैं नाम लेता। एनीवे चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स या इंपॉर्टेंस ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, आज आपकी मैं बड़ी क्लास ले लूंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स,
जल्दी जल्दी लिखिएगा। पहला, सर ये फोर्स इज इंडिपेंडेंट, दिस फोर्स इज 40 रुपीज के लिए पर्सनली, और पर्सनली नहीं है, इट इज हेल्प, क्योंकि इस बच्चे को मैं जानता नहीं हूँ। ऐसा नहीं है लबीबा दुरानी 40 रुपए के लिए पर्सनल। और इधर मैं कुछ भी हूं ना, अगर मैं कुछ भी हूं ना, शाइन टैग आ जाना। अगर शाइन टैग का इतना नाम है, इतनी फैन फॉलोइंग है, बट इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। दैट इज वाई मेरे लिए, बच्चों के लिए चार चांद में लगा सकता हूँ मैं, 24/7 अवेलेबल आपके लिए हूँ। ठीक है सर, क्लास जल्दी खत्म कीजिए, शब भी करना है, वो मुस्कान बात भी करना है, रात के 10 बजे के बाद शब कर लेना, ठीक है। सो अभी इसको बड़ा सा कर देते हैं, ठीक है। सो दिस फोरस इज independent, this force is independent upon the nature of, याद रखेगा, independent upon the nature of intervening medium, जो इनके बीच में दो मासेस के बीच में intervening medium है, उस पे डिपेंड नहीं करता, याद रखेगा, ये याद रखेगा, इंटरमीडियम पे डिपेंड नहीं करता। शाबाश मेरा डियर। दूसरा पॉइंट, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज कंजर्वेटिव। gravitational force is gravitational force is between two bodies is conservative, between two bodies is conservative, two bodies is conservative, ये तो बच्चा कंजर्वेटिव है। शाबाश शाबाश। तीसरा और इधर, लाइक मिस्टर सर, ओके, not interested Durani to answer your questions. Okay. Gravitational force between two bodies is central force. It acts along the line joining the center of two bodies. ठीक है. It is central force. It is central force. याद रखिएगा. As it acts, as it acts along the, as it acts along the line, as it acts along the line joining the सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज। अभी मैंने ऊपर लिखवा के गया था पहली, सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज, टू मैसेस भी बोल सकते हैं। ओके। तीसरा पॉइंट, सेंट्रल भी हो गया, याद रखेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। अगर वहां पर कोई और भी बॉडीज वगैरह, उनसे कोई मुझे मतलब ही नहीं बनता, ठीक है मेरे लिए। ग्रेविटेशनल लॉ, जो लॉ इट स्ट्रिक्टली होल्ड्स फॉर गुड फॉर पॉइंट मासेस। This law holds for point masses, point masses। कूलम्ब्स लॉ में आप पॉइंट चार्ज लेते हो मेरा, यहाँ पर भी वैसा ही बराबर, कूलम्ब्स लॉ 12th में पढ़ोगे आप, वहां पर भी दो चार्जेस लेते हैं। पता है कूलम्ब्स लॉ क्या है? देखो मेरा डियर, कूलम भी यही बोलता है, कूलम जैसा है, इधर 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 कूलम बोलता है, अगर आपके पास एक चार्ज पार्टिकल Q1 है, दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 है, इनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन R, ये दो चार्ज पार्टिकल अगर लाइक है, ये रिपल करेंगे बाय द फोर्स ऑफ रिपल्शन, अगर अनलाइक ये अट्रैक्ट करेंगे। एंड कूलम्स लॉ बोलता है दो चार्जेस पार्टिकल के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन निकालना होगा, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of charges and inversely proportional to square of distance between them. Similarly, universal of gravitation भी ऐसी है ना सर, the attractive force is directly proportional to product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. वहां पर भी हम लेते हैं मेरा डियर पॉइंट चार्जेस वहां पर भी लेते हैं, यहां पर लेते हैं पॉइंट मासेस के लिए, इट होल्ड इज गुड। चलो उसके बाद और एक पॉइंट लिखना चाहेंगे सर, याद रखेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है नेग्लिजिबल है इन केस ऑफ लाइट बॉडीज, बट बिकम्स अप्रेशिएबल इन केस ऑफ मासिव बॉडीज लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स, वहां पर इसका भी बड़ा खासा होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड, याद रखेगा, दैट इज व्हाई इट्स ओबेइंग द न्यूटन्स लॉ, याद रखेगा। एज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये पॉइंट लिखेगा बस इसमें, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज equal between two bodies is equal and opposite, that is F12 will be equal to minus
टू वन। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। सर एक मास मास है वन, दूसरा मास क्या है टू। इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स आएगा वन पे डालेगा टू, टू पे डालेगा वन, एंड ये आपस में इक्वल और अपोजिट होते हैं। इसी को बोलते हैं इवन इवन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशनल वेक्टर फॉर्म। याद रखेगा इस चीज को। क्लियर। अब कौन कौन से आपको लग रहा है दुनिया में इधर सपोर्ट करता है, दुनिया में कौन सी चीजें सपोर्ट करता है, इविडेंसेस है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को सपोर्ट करते हैं। मैं एग्जांपल बोलूंगा, लिखवाऊंगा नहीं, ये याद रखेगा ऐसे। पहला सपोर्ट जो कर रहा है सर, एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अगर एटमॉस्फेयर है ना अर्थ का, ये बच्चा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ये बात याद रखेगा, ये बात याद रखेगा। दूसरा, टाइड्स जितने भी बनते हैं ओशन में, दैट इज माय डियर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन मून एंड वाटर, मून एंड वाटर, याद रखेगा। तीसरा, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन एंड मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है मेरे, बेसिक काज तो ये, बाद में फिर आप टॉर्क से भी इसको एक्सप्लेन करते हैं। इवन मेरा डियर इधर देयर आर एन नंबर ऑफ पैरामीटर जो आप जिससे आप इसको डिफाइन करते हो, तो जनरल तो आप यही करते हो। इधर इधर ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, बट में इधर ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिसकी वजह से नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स मिलता है, बाकी चीजें मिलता है, वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। फिर बाद में टॉर्क आता है, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है मेरा डियर। उसके बाद इवन द टाइम्स ऑफ सोलर एंड ल्यूनर एलिप्स कैन बी आल्सो कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दिस इज अगेन सपोर्ट फॉर द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है मेरा डियर, ये चीज आप मेरा डियर इस चीज में ध्यान रखेंगे। -4 हो गया, क्या -4 हो गया? स्पेक्स का नंबर बढ़ गया, अच्छी बात है, बढ़ा दो। चलो ओके, ये हो गया यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, एंड डेरिवेशन फॉर वेरिएशन ऑफ g, that is acceleration due to gravity with respect to, पहले हाइट से निकालेंगे। हाइट को हम बोलते हैं ऑल्टीट्यूड भी, हाइट को बोलते हैं ब्रैकेट में ऑल्टीट्यूड भी, एज वेल एज डेप्थ से। शबा ये दो हमारे पास है। शबा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होता है, कैसे चेंज होता है। चलो मेरा डियर, चलो कि गुड 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 गुड, शाबाश मेरा जिगर। चलो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट 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 मेरा जिगर, शाबाश। चलो आ जाए, ग्रेट गोइंग माय डियर स्टूडेंट, गुड 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 गुड। चलो ओके, शाबाश, जल्दी जल्दी। चलो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको खत्म करते हैं। चलो ओके आ जाओ। और ये क्वेश्चन था पहले, कौन, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, मैंने एक्सप्लेन डिटेल में कर दिया है, चाहे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स भी बोले जो बोले, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया है। चलो ओके शाबाश। चलो आ जाए मेरा डियर, नाउ एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जल्दी जल्दी। चलो ओके मेरा डियर, शाबाश। चलो मेरे डियर, शाबाश शाबाश। जल्दी जल्दी, जिसको ये उतारना है, कुछ लिखना है इसमें, वो लिख सकता है। ओके, इज इट क्लियर? चलो ओके आ जाओ।
व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पहले, ठीक है। सो याद रखेगा, ये मैंने आपके सपोर्ट में सारे आंसर्स दिए। क्यों मेरा डियर, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ कहाँ लगता है सर? प्लैनेट्स में पहले इधर रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन एक्चुअली, उसके बाद टॉर्क वॉर्क बातें होती है उसमें, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है मेरा डियर। तो ये चीजें बहुत सारे डिटेल में हैं, सो देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स बाय विच आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। चलो मेरा डियर, ओके आ जाओ। पहले सर, व्हाट डू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट। चलो मेरा डियर, पहला, व्हाट डू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? सी मारिया सर, आपके पास, सी मारिया, अगर कोई भी बॉडी, बच्चा बच्चा ध्यान मेरी ओर, अगर कोई भी बॉडी सर फॉल कर रहा है, बात सुन लेना अच्छे से। मेरे पास कोई भी बॉडी है, ठीक है मेरा डियर, एंड दैट इज ड्रॉपिंग फ्रॉम सम सर्टेन हाइट। अगर मेरा डियर याद रखेगा, ये आपके पास सी है, ये आपके पास अर्थ है, ध्यान रखेगा, ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक बॉडी है, ये आपके पास एक बॉडी है, एंड इस बॉडी का मास है m, ध्यान मेरी ओर। किसी हाइट से इसको मैंने ड्रॉप किया, लेट हाइट जो है h से इसको मैंने क्या किया, ड्रॉप किया, ध्यान रखेगा। सी मारिया, एंड जब भी आप किसी बॉडी को किसी हाइट एच से ड्रॉप कर रहे हैं, बात सुन लेना मेरा डियर, एंड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से इस बॉडी ने, इस ऑब्जेक्ट ने जो एक्सेलरेशन अटेन की होती है, उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो सबको पता है। The acceleration attained by a body due to gravity over or gravitational force is known as क्या मारियर, acceleration due to gravity। या ये इधर, the force of gravity acting on a body having the unit mass placed near the surface of earth is also known as the acceleration due to gravity। याद रखेगा। आप बोलेंगे क्यों क्यों क्यों, बे दिखा देते हैं क्यों। ये और एक मैंने डेफिनेशन बता दी। एंड ये जो जी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है मेरा डियर। इसका वैल्यू हम लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो सबको पता है। सो मींस, सो मैं लिखूंगा द एक्सेलरेशन दैट इज अटेन्ड, व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, याद रखेगा, याद रखेगा, याद रखेगा सर। इट इज डिफाइंड एज द एक्सेलरेशन, it is defined as the acceleration that is attained by a body due to gravity, due to that's attained by a body due to gravity। याद रखेगा, the acceleration produced in a body due to gravity or ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं gravitational force is known as acceleration due to gravity। There is one more definition, आप लिख सकते हो। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये वो फोर्स होता है ग्रेविटी का, याद रखिएगा। इट्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ये बात याद रखिएगा। दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन। इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैविंग यूनिट मास, हैविंग यूनिट मास, हैविंग यूनिट मास, याद रखिएगा। प्लेस्ड, having unit mass placed near the surface of earth, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। याद है क्या? मैं इधर इधर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, इधर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैं क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोल सकता हूं? जरा मुझे बता दीजिए, शाबाश, लाइव चैट में बता दो, क्या बता सकते हैं कि बता सकते हैं? क्या ना इससे, क्या ना इससे, acceleration due to gravity is actually, acceleration due to gravity is gravitational potential। क्या ना इससे? yes or no? बोलो, बोलो, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बता दो। क्या इसको बता सकते हैं? इट्स आल्सो नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, या फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। बता जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बता दो चैट बॉक्स में, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? शाबाश, फास्ट।
जरा मुझे बता दो जल्दी जल्दी मेरा जगह, बता सकते हैं कि नहीं? जल्दी जल्दी बता दो। बता सकते हैं कि नहीं? अगर बता सकते हैं आंसर बता दो, क्यों बता सकते हैं, अगर नहीं बता सकते हैं क्यों नहीं बता सकते? चलो बता दो मेरा डियर, या इसको न्यूटोनियन बता दो ना मेरा डियर, क्या बता सकते हैं दूसरा नाम? फ्री फॉल, फ्री फॉल ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल सकते हैं, क्या बता सकते हैं? बोलो ना मेरा डियर, जल्दी बता दो। चलो शाबाश, जल्दी जल्दी क्या बोलते हैं? चल सर बता दो, यस यस सर, यस सर, साइबेशान यस सर, बता सकते हैं ओए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बता सकते हैं, क्यों बता सकते हैं जरा बताओ? क्यों बता सकते हैं, जरा रीजन बता दो जल्दी जल्दी मुझे। और जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है, जल्दी बता दो चैट बॉक्स में क्यों बना सकते हैं। शाबाश, बता दो क्यों बता सकते हैं। एक्चुअली जब आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हो, कहने से एक्चुअली माय डियर, एक्चुअली आई एम फाइंडिंग द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, बता सकते हैं कि नहीं, यस और नो? अननोन चेजर, यस यस। रीजन बताएगा वाई, वाई अगर बता सकते हैं यस तो क्यों? जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, जल्दी, लेट मी द चैट बॉक्स वेरी फास्ट। Yes, good. If we consider the unit mass, that's right. That is right, my dear. That is right, my dear student. Good, good, good. Great, great. That's the great. See here. क्योंकि F होता है बराबर इधर G टाइम्स m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। अगर आप यूनिट मास कंसिडरेशन करते हैं ना मेरा डियर, इधर इधर, अगर आप यूनिट मास कंसिडरेशन करते हैं तो G किसके बराबर होता है? G होता है ना gm/r², तो ये इक्वेशन वही बनेगा। Yes, yes, good, good. Sir, if we use the unit mass, then we can explain. Great, my dear. Good, good, great, great. कभी कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, कभी कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। सही है, सही बात, सही बात। चल, गुड गुड। यस, इफ वी कंसिडर यूनिट मास। ग्रेट, और कंसेप्ट क्लियर है, शाबाश, प्राउड ऑफ यू। तवई लिख में, इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग अ बॉडी हैविंग ए यूनिट मास प्लेस्ड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ओ देखा, क्या डेफिनेशन लिखवा के गया, इसीलिए मैंने ये डेफिनेशन लिखवाई। ठीक है मेरा डियर। सो चाहे कोई बोले, इट इज डिफाइंड एज एक्सलरेशन दैट इज अटेन्ड बाय अ बॉडी। सर, एक्सलरेशन जो बॉडी अटेन करता है, और आपको कभी ये ट्रिक किसी ने बोली है? इधर इधर हम ना एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू हाइट लिखते हैं ना मेरा डियर, इधर इधर। सर, एट एनी हाइट इट इज जी इंटू 1 - 2h/r। एंड कभी कभार ये भी लिखते हैं जी डैश इज इक्वल, इधर इधर, जी डिवाइड बाई 1 + h/r का होल स्क्वायर। ये कब लेनी है, ये कब लेनी है, जरा मुझे बता दो। ऊपर वाली इक्वेशन कब लेनी है, नीचे वाली कब लेनी है? दोनों इक्वेशन सही है, दोनों एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दोनों एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दोनों एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ऊपर वाली भी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, नीचे वाली भी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ऊपर एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिखाती है इधर ड्यू टू आल्टीट्यूड, नीचे वाली भी आल्टीट्यूड की वजह से। कैसे चेंज होगा? बट मुझे बता सकते हैं आप, ऊपर वाली कब लगानी है, नीचे वाली कब लगानी है? जरा मुझे बता दो, जरा मुझे बता दो जल्दी जल्दी, अगर पढ़ के गए, अगर पढ़ के गए, ऊपर वाली कब, नीचे वाली कब? g into 1 - 2h/r, that is the acceleration due to gravity at any height from the ground surface, and g dash is equal to g divided by 1 + h/r का होल स्क्वायर। ये भी सही है। ऊपर वाला कब, नीचे वाला कब? ऊपर वाली इक्वेशन कब, नीचे वाली कब? बता दो, बता दो जल्दी जल्दी, बता दो ऊपर वाली कब, नीचे वाली कब लेंगे? ऊपर वाले का फर्स्ट इक्वेशन टेक इन द कंसंट्रेशन व्हेन द हाइट इज मिनिमम। ग्रेट, शाबाश। व्हेन द एच इज वेरी 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 लेसर देन आर, शाबाश, गुड। एंड दूसरी लेनी है मैक्सिमम हाइट के लिए, जब हाइट अर्थ सरफेस से ज्यादा होगी। और आपको पता है कोई शॉर्टकट है? 500 किलोमीटर तक कितनी लेते हैं? 500 किलोमीटर के बाद कितना लेते हैं? कुछ पता है इसके बारे में? चलो, अगर ये नहीं पता है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। चलो, ओके ओके ओके, चलो आ जाए, यहां तक तो क्लियर है, शाबाश। एक इक्वेशन की जाती है स्मॉलर हाइट्स के लिए, दूसरी की जाती है लार्ज हाइट्स के लिए, अदरवाइज दोनों इक्वेशन सही है।
चलो ओके 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 ओके। अब हाइट कहां तक होगी, कितना एक वैल्यू है प्रफर्ड वैल्यू, अभी मैं बता दूंगा। जब हाइट इतनी होगी तो कौन सी इक्वेशन कब, अगर ये हाइट होगी तो इक्वेशन कौन सी। चलो मेरा डियर, सो मेरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्लियर हुआ। इट इज द एक्सेलरेशन, इफ आपके पास कोई बॉडी है जिसका मास m है या कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आप फॉल कर रहे हो फ्रॉम सम सर्टेन हाइट, एंड जब ये मेरा डियर इट इज मूविंग, इट इज ड्रॉपिंग टुवर्ड्स द अर्थ, एंड जब ये नीचे जा रहा है, इसने जो एक्सेलरेशन अटेन की होती है ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, and remember my dear that is going to be acceleration due to gravity. Okay my dear, so acceleration attained by any body due to earth's gravitational force या gravity that is going to be acceleration due to gravity. Yeah sir, ये वो force है, if the force of gravity acting on body having unit mass, sir ये वो acceleration होती है जो बचा, ये वो force of gravity जो act करता है unit mass पे, जो that is placed near the surface of earth। क्या है, हाँ चल मैं आ रहा हूँ, चलो बाय, ये ले चलो। ठीक है, सो आप ये भी लिख सकते हो। चलो ओके मेरा डियर, क्लियर नाउ। वेरिएशन, वेरिएशन हेडिंग डालेंगे बड़ा सा, इसकी डेरिवेशन, वेरिएशन ऑफ जी, और इसके बाद इतना ही नहीं 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 नहीं, पहले पहले तो ये पॉइंट लिखवाना है। शाबाश मेरा डियर, जी का वैल्यू शाबाश कितना होता है मेरा डियर, याद रखिएगा जी का वैल्यू, जी का वैल्यू ये तो पता है 9.8। सी यार इधर ध्यान रखिएगा, पहले आप ध्यान रखिएगा, पहले पहले तो एक चीज भूल गए थे, चल चल मेरा जगह इधर, सी ध्यान रखिएगा मेरा डियर, एज वी हैव, ध्यान मेरी मेरा डियर, इट इज वैल्यू, एक पॉइंट तो भूल गए थे, दो पॉइंट्स तो भूल गए, इट इज वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन, किस किस पे डिपेंड करता है या किस किस से चेंज होता है, इट डिपेंड्स अपॉन, ए लिखेंगे, एक तो बच्चा याद रखिएगा, वेर वेर जी जो है ना, ये चार चीजों से चेंज होता है। एक तो हाइट, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ या हाइट अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ, जी का वैल्यू चेंज होता है, याद रखेगा। जब आप अर्थ से हाइट ऑल्टीट्यूड कवर करते हो ये चेंज होता है। दूसरा 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 डेप्थ, डेप्थ मीन्स माय डियर बी वेरी क्लियर, डेप्थ से चेंज होता है। अगर अर्थ से आप, अर्थ के सेंटर से आप अर्थ के सरफेस से डेप्थ कवर करते हो, डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, उस पर डिपेंड करता है। तीसरा 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 जिस पे डिपेंड करता है, दैट इज शेप ऑफ अर्थ, अर्थ का शेप पे भी डिपेंड करता है। अगर शेप ऑफ अर्थ चेंज होगा जी भी चेंज होगा। अगर आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे जी भी चेंज होगा, या नीचे आएंगे जी भी चेंज होगा। शाबाश। एंड इधर उसके बाद मेरा डियर इधर इधर, ये नया क्वेश्चन है वास्पा, ये नया क्वेश्चन है यार, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन खत्म हो गया, ये है क्वेश्चन आएगा, डिफाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिराइव द रिलेशन फॉर वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ एंड ऑल्टीट्यूड। या तो डेप्थ आएगा या तो ऑल्टीट्यूड आएगा, दोनों में एक आता है। शेप ऑफ अर्थ एंड दो लास्ट जिस पे डिपेंड करता है, दैट इज एक्सियल रोटेशन, दैट इज एक्सियल रोटेशन, ये इधर इधर एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ, जो पिछला गया ना यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ पे भी डिपेंड कर रहा है। जो आप बोलते हो ना बस पे पिछला वाला, वो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन वो चला गया, वो 3 मार्क्स है। ये नया क्वेश्चन है, वो देख लो तो ऊपर, ये नया क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सर व्हाट डू मीन बाय, इधर इधर इधर, व्हाट डू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिराइव द रिलेशन फॉर वेरिएशन ऑफ जी विद द हाइट, ये अलग क्वेश्चन बनेगा या डेप्थ से पूछेगा। चलो मेरा डियर, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन वो चला गया, 3 मार्क्स का था। चलो क्या आ जाओ। सो इन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है सर, हाइट पे, डेप्थ पे, याद रखेगा हाइट पे, याद रखेगा हाइट पे डिपेंड करता है, शाबाश, एंड डेप्थ पे डिपेंड करता है, शाबाश, शेप ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, और एक्सियल रोटेशन दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, उस पे डिपेंड करता है। चलो मेरा डियर, अब करते हैं पहला वेरिएशन जो मैंने अभी लिखा, अब पहला डिराइवेशन, वेरिएशन ऑफ, पहला वेरिएशन ऑफ, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ब्रैकेट में जी, विथ रेस्पेक्ट टू हाइट।
विथ रेस्पेक्ट टू हाइट। हाइट का दूसरा नाम ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं। चलो मेरा डियर, शाबाश। व्हाट डू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? ओहो, सो सैड 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 सैड। रुको 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 भाई, अभी तो इसका और एक चीज भूल गया। ओके ओके ओके, वेट अ सेकेंड यार, क्या भूल गया? इक्वेशन इसकी लिखना। इधर इधर रुको पहले। एस हमें पता है, एफ होता है बराबर, इधर इधर मेरा जिगर, एफ होता है इधर। अगर मैंने यहाँ पर इधर लेट इट इज द मास ऑफ अर्थ, इधर ये इधर ये एम है, दिस मास ऑफ अर्थ। एंड यहाँ पर एक बॉडी है, इसका मास है एम। इनके बीच में डिस्टेंस है आर, ध्यान रखेगा। सो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, दैट विल बी जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। वही हो गया। शाबाश, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो as per Newton's law, F is equal to mass into acceleration. This is equation second. From, शाबाश, फ्रॉम याद रखेगा। बट यहाँ पर सर, यहाँ पर सर 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 क्या, यहाँ पर सर फोर्स इज द मास इनटू एक्सेलरेशन। बट मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्सेलरेशन जो बॉडी ने अटेन किया ना, उसको नाम रखेंगे जी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, एफ एफ होगा कैंसल, एफ एफ होगा कैंसल। जी एम, एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी के बराबर। एम एम होगा कैंसल, सो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर होती है जी एम बटा आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ acceleration due to gravity, g का value, where g is the universal gravitation constant, m is the mass of earth planet, r is the radius। ये mass of body पे depend नहीं करता, g depend करता है, it depends upon mass of earth, mass of planet, not on mass of body, not on mass of body। सर कैपिटल एम हो गया मास ऑफ प्लेनेट, कैपिटल एम हो गया मास ऑफ प्लेनेट, कैपिटल एम हो गया मास ऑफ प्लेनेट। मास ऑफ प्लेनेट पे डिपेंड करेगा, नॉट मास ऑफ द बॉडी। बात क्लियर कर लेना। सो इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ प्लेनेट, इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन द एम, माय डियर, बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। इट इज नॉट गोइंग टू डिपेंड अपॉन योर स्मॉल एम, स्मॉल एम इज गोइंग टू बी योर mass of the body, be very clear। And it is going to depend the r, what is my dear r? R is going to be a shape of the, shape of body, याद रखेगा मेरा dear, shape of the planet। And r means your radius or shape, and radius or shape, radius or shape पे भी बोल सकते हो आप। चलो ये याद रखेगा, जी एम बटे आर स्क्वायर, जी एम बटे आर स्क्वायर, जी एम बटे आर स्क्वायर, जी एम बटे आर स्क्वायर। इसको ये भी लिख सकते हैं ओ आर, और अगर कैपिटल से डिनोट करे कोई जी एम डिवाइड आर को आप कैपिटल से भी लिख सकते हो, आर स्क्वायर। शाबाश मेरा डियर, क्लियर क्लियर क्लियर। ये तो बच्चा जी का इक्वेशन हो गया। अब चलो वेरिएशन करते हैं, अब है वेरिएशन। अब लिखते हैं बच्चा वेरिएशन। चलो मेरा डियर, अब लिखते हैं वेरिएशन। आज ही करेंगे कल करें, बता दो जल्दी जल्दी, लेट मी इन द चैट बॉक्स वेरी फास्ट। आज ही करें कल करें वेरिएशन, इधर बता दो। अब है वेरिएशन ऑफ, आज करें कि कल करें, बता दो। वेरिएशन आज बोलते हैं आधे, हमें शब करना है, बता दो। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन, अब मजा है, अब मजा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बता दो अभी करें कि कल करें। ड्यू टू, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी। ड्यू टू पहला ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट, ऑल्टीट्यूड को ब्रैकेट में हाइट भी बोलते हैं। और दूसरा डेप्थ, बता दो अभी करना है कि कल करना है, बता दो जल्दी जल्दी। शबा अभी के कल, पागा प्लीज। शबा ओ जल्दी जल्दी, मैं फुल फॉर्म में हूँ, बता दो अभी करना है कि कल करना है। अगर नमाज वमाज पढ़नी है तो छोड़ सकता हूँ, तो अगर नहीं तो फिर कंटिन्यू करते हैं। बता दो जल्दी जल्दी। ये कल मुझे लगता है, कल नहीं परसों ग्रेविटेशन खत्म होगा। बता दो जल्दी जल्दी, बता दो जल्दी जल्दी। चलो शाबाश, जल्दी जल्दी। अभी के कल, अभी के कल, बता दो अभी के कल करना है। शाबाश, अभी के कल करना है अभी। सर कल प्लीज, सर प्लीज, मुस्कान सर प्लीज, सर आज अल्लाह से बहुत कुछ मांगना है। अच्छा अच्छा,
सर प्लीज टुमारो, अभी सर या खत्म करेंगे। अननोन चेजर, अभी सर प्लीज, अभी कंटिन्यू सर। कल सर नमाज प्लस डिनर। अब चलो नमाज के वास्ते छोड़ देते हैं। पोल डाल लीजिए सर, रुको मैं पोल डाल देता हूँ। कहाँ पर आता है? कहीं पे पोल आता है इसमें। सुपर चैट, सुपर चैट। रुको एक सेकेंड। एक सेकेंड। नमाज पढ़नी है, चलो कोई नहीं, नमाज के वास्ते छोड़ देते हैं। चलो कोई नहीं, मेरा जगह। चलो अल्लाह से इधर इधर, चलो मेरा जिगर, अच्छी बात है। चलो कोई नहीं इतना, चलो कल इसको मैं लंबी क्लास खींचता हूँ। कल मैं कोशिश को खत्म करने की करूंगा, ग्रेविटेशन को। तयशु न्यूमेरिकल करना उनमें सारे, वो एक दो क्लास रखी है मैंने, पूरे 10 साल के जितने भी न्यूमेरिकल आए ना वो सारे करा दूंगा। हर चैप्टर पे जो मेन मेन क्वेश्चन, और हॉट स्पॉट सिकल्स, जो 1 नंबर 2 नंबर है ना, वो भी बता दूंगा कौन क्वेश्चन होगा। उनके थोड़े दो दो लाइनस, तीन तीन लाइनस कैसे याद रखने हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ना जो राइज हो सकते हैं एग्जामिनर में। हॉट थिंकिंग सिकल्स क्वेश्चंस, तो वो 1 नंबर और 2 नंबर में पूछ सकते हैं, उनमें थोड़ा सा फोकस करा देता हूँ। बाकी सारा ओके है, ठीक है। चलो इधर, आप टेंशन मत लो मेरा जिया। चलो ओके, कल लंबी क्लास लेता हूँ, कल मैं इसको कोशिश करता हूँ खत्म करने की। बाकी मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह आपको ज्यादा इज्जत दे, तरक्की दे। मेरे लिए भाई अल्लाह से बहुत कुछ मांगना है आज, ठीक है। बाकी आपको अल्लाह बहुत इज्जत दे, तरक्की दे। आप जिंदगी में खूब आगे बढ़ो। जो भी आपके मकसद है, अल्लाह ने जो भी आप चाहते हो अपने, अल्लाह मियाँ से मांगने की, आज वो आपको पूरा हो जाए। शाबाश। जो भी आपकी जिंदगी में जो भी चीज है, आपके माँ के मम्मा पापा के प्रतीक करना चाहते हो, एक्स्ट्रॉर्डनरी जो एक्सपेक्टेशन है, एक आपसे बड़ा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीदें लगा के रखे, अल्लाह आपको उन उम्मीदों पे हमेशा कामयाब करे, उन पे आप अच्छे से वो स्टैंड हो जाए। बाकी माई दुआज आर विथ यू, खुदा दिनो जात जात इज्जत, जात जात तरक्की दिनो। बाकी आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, आई ऑलवेज सी माई सेल्फ इन यू। यू पीपल आर माई स्ट्रेंथ, यू पीपल आर माई एक आंख का तारा। आई रियली लव यू बाई कोर ऑफ माई हार्ट अल्लाह, एंड यू लिव लॉन्ग माई डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे, आप बहुत आगे जाओ, बहुत पैसे कमाओ, बहुत इज्जत कमाओ। एंड जो भी आपके मकसद है, एक डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, एक बड़ा सा एक स्टेटस वाला एक रोल मॉडल लोगों के लिए, एक इंस्पायरेशन बनना, अल्लाह आपको उसमें कामयाब करे। बाकी मुझे दुआओं में याद रखेगा। आई रियली लव यू। जैसा भी लाइक, अच्छा चलता हूँ दुआ में याद रखना। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरा जिक्र जुबान पे याद रखना, ठीक है। सर आपके लिए इज्जत मांगना है। चलो मेरे लिए इज्जत मांगना, मेरे लिए क्या मांगना, मैं और बच्चों को मदद कर सकूं जिंदगी में। मैं और बच्चों का एक रे ऑफ होप बनूं, उनके लिए आंख का तारा बन जाऊं, उनके लिए एक रे ऑफ होप बन जाऊं, उनके लिए एक्सपेक्टेशन बन जाऊं बच्चा, उनके लिए एक जरिया बन जाऊं मेहनत कराने का, उनके लिए एक जरिया बन जाऊं उनके ड्रीम उसको पूरा करने में। बाकी अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे। मैंने बार बार बोला, इफ आई लव टू डाई, आई विल लव टू डाई फॉर अ ड्रीम ऑफ माई स्टूडेंट। आई रियली लव यू बाई कोर ऑफ माई हार्ट। अल्लाह ब्लेस यू। लॉट्स ऑफ लव, lots of respect from my side. Proud to have a students like you. So please दुआ करना जरूर, खुसूसन मेरा नाम लेके। बाकी चलो मिलते हैं कल क्लास में फिर से। अगेन माय डियर स्टूडेंट, आई रियली लव यू, लव यू, लव यू बाय कोर ऑफ माय हार्ट। सी यू टुमारो, टिल देन माय डियर स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज। टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज माय डियर स्टूडेंट।